Hey, hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is your Ramandeep Singh and today we're going to be learning about this क्या कहते हैं conditional statements है ना. So we have learned about basics of input output in a Python, how to read some input, how to print a text है ना, how to print some integer, how to perform basic arithmetic calculations, what are comments, readability of a code, etc. Basically the basic principles before we start writing some actual program. Now a program is made up of statements are building blocks of a program. One of the most crucial statements which we have in programming are conditional statements. Conditional statements, ठीक है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. ठीक है. अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. तो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दैट. कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस व्हाट आर कंडीशंस है ना, कि लेट्स से यू आर गोइंग आउटसाइड है ना. सो लेट्स से यू वांट टू गो आउटसाइड टू परचेज सम गुड्स फॉर योर होम एंड someone in your house says okay, since it is like if there is a rain है ना, if there is a rain outside, take an umbrella, समथिंग लाइक दिस इज वन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट है ना. स्टेटमेंट दिया उसने कि भाई अगर बाहर बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना, फर्स्ट थिंग. सेकंड इज इफ लेट्स से क्या कहते हैं उसको, इफ लेट्स से इफ योर रैंक और जेई रैंक है ना इज मे बी कि भाई लेस देन 5000 समथिंग लाइक दिस, देन यू विल गेट CSC. अदरवाइज नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लो भाई, नेक्स्ट ड्रॉप, ठीक है. दिस टाइप ऑफ. तो यहाँ पे एक कंडीशन है ना कि इफ योर रैंक लाइज बिलो दिस थ्रेश होल्ड 5000, then you can opt for CSC in some good college. Otherwise try for the try next year, ठीक है. That is a statement. This is also a conditional statement. So based on some condition we are making a decision, है ना. So these type of statements are called conditional statements. So let's study about the first type of conditional statement, that is if statement. So syntax is simple. If some condition, then your write your code here. कि if this condition is true, so this condition evaluates to either true or false. If it is true, then this code, whatever you write in this block, it will be executed. Otherwise, we will skip to the next instruction. Simple. Cool hai? We will skip to next instruction. Now that is a conditional statement. If is a conditional statement, and there are 4 spaces here before you start writing some code here. These are 4 spaces. How many spaces are there? 4 spaces. We have 4 spaces before we start writing some program. So we start writing from here. So we have 4 spaces. Cool है. शुरू करते हैं. वो कहाँ की फाइल अपनी, अच्छा ये तो सबलाइम है. ओके, लेट्स ओपन अप द विजुअल स्टूडियो कोड, दिस वन. So we are studying about conditional statements, है ना. अच्छा,
क्या कहते हैं उसको, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि वी आर let's start with the basic thing that is let's start with the basic thing that is क्या कहते हैं उसको, बेसिक इफ स्टेटमेंट है ना। सो इफ लेट्स से योर कंडीशन देन राइट योर कोड हियर। अब देखो, दिस इज द सिंटेक्स if keyword. So this if is a keyword, the interpreter knows what is the meaning of if. Then this condition you write कि like we had कि भाई अगर बारिश हो रही है, then you have this colon, then in the next line we have 4 spaces. So when you hit enter, the cursor will stand 4 spaces towards right from the left hand. So you can see delete, अच्छा कैसे करते हैं, बैक स्पेस। अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस दबाओ ना 1, तो ये 4 स्पेसेस हैं। जैसे मान दो स्पेस 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 लाइक दिस, स्पेस 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 4 स्पेसेस, या एक टैब स्पेस है ना, टैब, एक टैब जब दबाते हैं तो 4 स्पेसेस बन जाते हैं हमारे पास। कूल है। So this is your conditional statement. So let us write, this is the syntax for it. चलो इसको इस कमेंट्स में लिख देते हैं, ठीक है। आते हैं, अब सिंटेक्स हो गया। लेट्स ट्राई आउट एन एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए इफ़ योर रैंक, लेट्स से वी हैव अ रैंक वेरिएबल, रैंक इज, मेरी रैंक आई है 3590, ठीक है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे को CSE मिलेगी या नहीं। सो इफ़ रैंक इज लेस देन 5000 और मे बी इक्वल टू, प्रिंट करेंगे या you will get CSC branch in good college, else print try next year, ड्रॉप ले लो, ठीक है। कूल है। अब देखो, दिस वॉज द क्या कहते हैं इसको, प्रोग्राम है ना, दिस इज द बेसिक प्रोग्राम वी हैव। अब इसको चला के देखते हैं अपने, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, इफ स्टेटमेंट देन वी हैव रैंक लेस देन इक्वल्स टू नंबर 5000, देन यू विल गेट अ गुड CSE ब्रांच इन गुड कॉलेज, देन यू गना क्या कहते हैं उसको, ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी, ये कौन सा प्रोग्राम चल गया, अच्छा ये सब चल रहा है क्या, हटाओ इसको। देखो, यू विल गेट CSE ब्रांच इन गुड कॉलेज, ठीक है। और आपकी रैंक अच्छी है, देन यू विल गेट इट, ठीक है। ओके कूल है। देन व्हाट आफ्टर दैट, so now you have this rank thing, you have good rank, you'll get good branch in CSE, and then you otherwise if let's say your rank is 6000, 10,000 लेते हैं, 10,000 रैंक लेते हैं, चलो है ना। ट्राई नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कूल है। चलो ओके कूल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। दिस वाज द बेसिक, अच्छा एल्स तो मैंने बताया ही नहीं अभी, और ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। एल्स तो भूल जाओ, अगर आ गया समझ तो ठीक है, नहीं आया तो इतना ही अपने पढ़ा है कि इफ़ सम कंडीशन, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ओके देन प्रिंट दिस, नहीं है सही तो आगे बढ़ो, आगे वाला कोड जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या आएगी, हमारी जो रैंक है दैट रैंक इज, लेट्स से रैंक तो चलो वही है, बट अभी
मैं ये भी करना चाहता हूँ ठीक है, अगर नहीं मिला तो लेट्स से इफ आई डू नॉट हैव द राइट रैंक देन व्हाट शुड आई डू, है ना। सो देयर आर टू कंडीशंस लेट्स से, है ना, इफ एल्स 0101 जैसे होती है कि अगर ये नहीं तो ये, है ना, है ना, समझ रहे हो ना, कि अगर ये कॉलेज, अगर मान लो मेरे को CSE नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो इफ़ उस केस में इफ रैंक इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5000 तब तो ठीक है, मेरे को CSE मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो क्या होगा, प्रिंट ट्राई नेक्स्ट ईयर, है ना। अच्छा वो क्या कहते हैं, एक और होता है कि जैसे ठीक है यू विल गेट CSE ब्रांच इन गुड कॉलेज, प्रिंट ट्राई नेक्स्ट ईयर। या फिर वो क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्या ले सकते हैं, इवन ऑड का एग्जांपल लेते हैं, है ना। चेक फॉर इवन ऑड नंबर। नाउ लेट्स से यू हैव सम नंबर एंड यू गोना चेक, इनपुट लेते हैं चलो नंबर को, देखो मैंने इनपुट लिया, है ना, एंटर अ नंबर। तो अब वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगा, उसको मैंने इंट में टाइप कास्ट किया, देन इट विल बी स्टोर्ड इन दिस नम वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा, इफ़ नम इज़ इवन प्रिंट इवन नंबर, नहीं तो फिर प्रिंट ऑड नंबर। और सोचो और क्या हो सकता है, और एग्जांपल्स सोचो अपने एंड पे, है ना, है कोई एग्जांपल्स, यू कैन थिंक अबाउट इट। कि भाई अगर चलो ठीक है लेट्स से बीटेक करके अगर कुछ नहीं बने इंजीनियर तो क्या करेंगे, है ना। जैसे क्या करेंगे, है ना, ऐसा कुछ एग्जांपल्स। लेट्स से इफ़ यू डू नॉट बिकम सक्सेसफुल बीइंग अ गुड इंजीनियर, है ना, एम्प्लॉयबल इंजीनियर, है ना, मेरे मतलब गुड इंजीनियर मतलब गुड इंजीनियर मतलब जो एम्प्लॉयबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन कि एम्प्लॉयबल ही नहीं है ना, यहाँ पे बहुत से लाइक आई हैव सीन लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन सम कॉलेजेस हु आर नॉट एम्प्लॉयबल इधर ना। तो इफ़ यू आर एम्प्लॉयबल यू आर अ गुड इंजीनियर, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर देन व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स। अब देखो, यस सॉरी फॉर दैट। ओके सो हेलो हाय एवरीवन। सो क्या कर रहे थे अपने, हाँ इवन ऑड वाला, ठीक है। सो दिस थिंग वाज, हाँ तो अपने थे यहाँ पे इवन ऑड, ठीक है। सो थिंक अबाउट मोर एग्जांपल्स, इफ एल्स। सो दिस इज ऑल्सो
when you have two conditions, है ना. Now we let's move to the multiple condition thing. ये क्यों आ रहा है? Multiple condition thing, multiple conditions thing. If condition 1 elif condition 2 elif condition 3 else cool है. So that's how you gonna like क्या कहते हैं उसको, do it, है ना. That's how you are supposed to do it. Condition 1, condition 2, condition 3 and then condition 4. ओके कूल है. अब देखो इसमें क्या है कि आपको यू नीड टू राइट मल्टीपल कंडीशंस एंड यू आर सपोज टू क्या कहते हैं उसको यार, इसमें आपके मल्टीपल कंडीशंस होंगे एंड साथ ही साथ इसमें यू विल हैव क्या कुछ नहीं, मतलब लेट्स से यू हैव मल्टीपल कंडीशंस देन यू यूज़ दिस इफ एलिफ लेटर. ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं. फॉर इंस्टेंस लेट्स से ग्रेड सिस्टम है ना, ग्रेड सिस्टम, school grade system. So what do we have in a school grade system? Let's say you have some marks, your marks is let's say 65. ठीक है. Now if marks greater than equals to, कि भाई सिस्टम होता है ना कि अगर तुम्हारे मार्क्स जो है वो 30 से 33 के आसपास होती है कट ऑफ, आई थिंक 33 से लेस है, 33 से लेस है, देन दैट मीन्स यू आर अ फेलियर, है ना. तो प्रिंट फेल है ये, ठीक है, फेल है ये, ठीक है. सो वी कैन राइट फेलियर. देन अगर जो मार्क्स है वो क्या है अपने लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, 33 है, कट ऑफ क्लियर कर गया, एंड मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है अपने क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 50 है, 40 है, 40 नहीं 50. ग्रेड सिस्टम प्रिंट करो, हाँ सी ग्रेड है, सी ग्रेड, ठीक है. दिस पर्सन इज पास्ड विद सी ग्रेड. देन लेट्स मूव एलिफ मार्क्स greater than 50 and marks less than equals to 70. Print passed with D grade. Else elif marks greater than 70 and marks less than equals to 100. Not D, B. Then this person 80 लेते हैं, 80 या 90 लेते हैं, 90 से कम है, 70 और 90 के बीच में है. तो इस बंदे की लेट्स से या फिर अब तो चलो ठीक है 3 ग्रेड्स रख लेते हैं ना, A B C 3 ग्रेड्स रख लेते हैं, ठीक है. 70 तक है तो B ग्रेड, अदरवाइज 70 से अबव है, स्ट्रिक्टली अबव है, 70 to 100 के बीच में कुछ भी है, देन दैट पर्सन इज ऑफ A ग्रेड पर्सन, पास्ड विद A, ठीक है, पास्ड विद A ग्रेड पर्सन, ठीक है, पास्ड विद A ग्रेड मार्क्स. Now we have these four. How many conditions we have in this grade system? We have 4 conditions. है ना. First is a failure category. Then we have this C grade category. Then we have this B grade category. Then we have this A grade category. ठीक है, cool है. In this fashion, we have distributed the marks according to category wise of the student. Now the student
whatever the student is will always lie in one of these categories. So here we had multiple conditions, and hence we scored well. Hence we wrote a program in order to handle these conditions. ठीक है, cool है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं. So that was another conditional statement. I hope you learned if else, if else, if elif. ठीक है. So I think that's enough for this video, and I will give you some. I will end this session with some examples. Let's take some examples. The first one is write program to check for leap year. हाँ, leap year का होता है एक. Then second is write a program to check for leap year, and then we have grade system हो गया था. What else we can think of? हाँ, check whether a number is positive, negative or zero. ठीक है. Then we have this third thing, that is simple calculator. Try this one. This is a good task. Try to create a calculator which performs, let's say, plus, minus, division, multiplication. That's all. है ना? So there will be two operands. Plus will have two operands means these are operators. है ना? We'll discuss about them. These are operators, and you are supposed to, क्या कहते हैं उसको, we have some operators and then we have operands, है ना? So basically try to create a simple calculator. We'll learn, maybe in the next lecture we'll learn about operators and operands. Then we will create this in the next session, है ना? We'll create a simple calculator with whatever knowledge we have gained so far while discussing about what are operators and what are operands, है ना? So that's it for this video. I hope learned about conditional statements, what are, how to use if, like how to use if else, how to use if elif else, and when to use them. ठीक है, and why do we need them? You have the questions, you have answers for all of these type of questions, है ना? And you are better equipped with some new tools in order to solve problems. ठीक है, cool. So that's all for this video. We'll see you soon in the next session. Till then, keep coding and keep learning. All the best. Bye bye.